So we're gonna do May June 2022 paper 1 variant 2. Actually, the first question states the photomicrograph shows a bronchiole and alveoli. The magnification of the image is times 360. What is the maximum diameter of the bronchial lumen? So pretty straightforward. Magnification equals to image size upon the actual size. They're asking us the maximum diameter of the bronchial lumen. तो हमारे पास जो greatest length होगी between the 2 points in a bronchiole, we'll take that length. That would be our lumen size. We would measure this, and this would give us our image size. And we to figure out the actual size, तो वो हमें already क्या कहते हैं figure out करना है. So we would write this as x, and the magnification is given to us as times 360. When we'll put in these values, your answer for क्या कहते हैं x would come out to be 140 micrometers, which is basically option number C. Okay. A specimen is observed twice with a microscope. Firstly, using green light with a wavelength of 510 nanometers, and then using red light with a wavelength of 650 nanometers. What happens to the magnification and resolution when using red light compared to green light? This is an interesting question because over here they are testing your concept of the factors upon which magnification depends and the factors upon which resolution depends. Now, magnification basically depends on what? It depends on the power of the lens. हमारे पास क्या कहते हैं जो लेंस की पावर होगी जितना टाइम्स वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा मैग्नीफाई कर रहा होगा that would basically change the magnification. Over here, when we're observing the specimen twice, we're not changing the lens. We're not changing the power of the lens. They've not mentioned at any point कि हमारे पास lens या magnification या power of the lens change हो रही है. So because magnification depends on the lens power and not wavelength, A and B are out. Now, if we talk about resolution हमें पता है depends on wavelength. So because we are changing the wavelength, सो डेफिनेटली रेजोल्यूशन पे फर्क पड़ रहा होगा ना. हमारे पास जो रेजोल्यूशन हम फिगर आउट करते हैं वो किस तरह से करते हैं. यू गाइस वुड बी अवेयर कि हमारे पास जो लाइट की रेजोल्यूशन है we say that it is the minimum resolution from a light microscope is 200 nanometers. और वो जो हम 200 nanometers की फिगर लाते हैं वो हम किस तरह से लाते हैं. we know कि हमारे पास जो विबग्योर है जो हमारे पास white light है उसकी रेंज is basically 400 to 750 nanometers, around 700, 750 nanometers. So हमारे पास दिस इज द रेंज ऑफ लाइट. तो हमारे पास इस रेंज का जो लीस्ट वेवलेंथ होती है हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं एंड दैट गिव्स अस बेसिकली द रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन का जो हम कॉन्सेप्ट या रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं दैट इज रेजोल्यूशन इज हाफ द वेवलेंथ. So over here we can see that resolution is directly proportional or directly related to the wavelength. तो अगर हम wavelength बढ़ाएंगे resolution बढ़ेगी. अगर हम wavelength को कम करेंगे तो resolution कम होगी. Over here what is happening? हमारे पास basically green light थी 510 nanometers की, सही है. और हमारे पास क्या कहते हैं हम उस 510 nanometers हमारा पार्ट 1 था which was 510 divided by 2. So 510 हमारी इनिशियल रेजोल्यूशन क्या थी. हमारी इनिशियल रेजोल्यूशन was this would be 255 nanometers. और फिर हम जब क्या कहते हैं दूसरी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दैट इज बेसिकली 650 nanometers. This would be 325 nanometers. So जब हम रेड लाइट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो रेजोल्यूशन है दैट इज अ ग्रेटर वैल्यू. आवर रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ रही है और हमारे पास क्या कहते हैं over here it is 255 nanometers. Can you guys tell me what the 255 nanometers and 325 nanometers suggest? कि हमारे पास अगर 255 nanometer है तो हमारे पास better resolution है या 325 nanometers है तो हमारे पास better resolution है.
Which one gives us a better resolution? Okay. If as I was saying 255, what about the rest of you? Better resolution किसकी है? ज्यादा क्लियर हमें कब नजर आए? 255 नैनोमीटर से. So हमारे पास the resolution is better when we are using the green light. Why? Because इसकी सिंपल एग्जांपल वो ये, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप की हम कहते हैं मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 200 नैनोमीटर्स होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.5 नैनोमीटर्स होती है. तो हमारे पास हम कहते हैं that 0.5 नैनोमीटर हैज अ बेटर रेजोल्यूशन, बिकॉज हमारे पास क्या कहते हैं, ज्यादा क्लियरली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इवन द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स और द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल when we are looking at the specimen through an electron microscope. So, हमारे पास they're asking us that resolution जब हम red light use कर रहे हैं compared to green light, तो resolution को क्या हो रहा है? Resolution decrease हो रही है because this was a better resolution, this is a less better resolution. So when we are using red light, our resolution is decreasing. Is this clear? Any questions about this? Four students were asked to match the function with the appearance of some cell structures in an animal cell. The functions were listed by number. Number one produces the mitotic spindle during cell division. This is basically your centriole, so we would have to look at a description closest to a centriole. Synthesis of polypeptides. Now, synthesis of polypeptides, when we have RER or ribosomes. Synthesis of lipids would be SER. The appearance were listed by letter. Membranes which surround an enclosed inner cavity. Now, V is not a very clear statement because membranes which surround an enclosed inner cavity could be an SER, could be an RER, could be a Golgi. क्योंकि इन तीनों में हमारे पास श्रेणी होती हैं और enclosed cavity होती है. Non-membrane bound spherical structures. Now, non-membrane bound spherical structures are ribosomes. A double membrane interspersed with pores. Now, a double membrane interspersed with pores would be your nuclear membrane. Non-membrane bound cylindrical structures. Now, non-membrane bound cylindrical structures are basically your centrioles. हमें पता है कि हमारे पास जो centrioles होते हैं, they're cylindrical. They're made up of tubulin proteins, microtubules से बने हुए होते हैं. And there is no phospholipid bilayer or a membrane that is surrounding centrioles. So, why has to be centrioles? Membrane bound sacs arranged as flattened stacks. तो हमारे पास ये कहते हैं this would be what? This would be Golgi. Now, let's start matching the numbers. We know for a fact that 1 has to be Y. So 1 would be Y. So let's see. C and B में से हमारा कोई आंसर होगा. A और B को हम कैंसिल कर देते हैं. Okay. Now, synthesis of polypeptides. Now, synthesis of polypeptides के लिए हमारे पास C और D में से दो options हैं. W and Z. Now, W is what? Non-membrane bound spherical structure. So, yes, W हो सकता है. Z क्या है? Z is Golgi. Golgi cannot be the answer because Golgi क्या करता है? वो protein modification करता है. Synthesis of polypeptides नहीं करता. Synthesis of polypeptides की हम जब बात करते हैं तो हम protein synthesis की बात कर रहे हैं. Golgi का काम protein synthesis का नहीं होता. So, Z cannot be the answer. अच्छा जी. उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, लास्ट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कैन बी वी बिकॉज फॉर वी आई सेड ये हमारे पास एसईआर भी हो सकता है, आरईआर भी हो सकता है और गोल्जी भी हो सकता है बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स हैव मेम्ब्रेन and even it could be a lysosome as well because lysosome is also a membrane bound vesicle which has an inner cavity. So we could be a lot many things. तो हमारे पास we के umbrella में वो भी आ रहा है, SER भी आ रहा है and hence we would say that C is the correct answer. What is found in chloroplast and mitochondria? 70S ribosomes only, 70S ribosomes and circular DNA, 80S ribosomes and circular DNA only. Pretty easy. This would be B. Which feature is correct for all known viruses? Now, all known viruses have two things. हर वायरस के पास दो चीजें होंगी, एक उसका कैप्सिड प्रोटीन कोड होगा और एक उसका क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होगा.
ईदर आरएनए और डीएनए, दोनों साथ कभी भी नहीं होंगे. ईदर इट वुड बी आरएनए वायरस और इट वुड बी अ डीएनए वायरस. ओके. Which feature is correct? A capsid made up of lipid and protein. Now हमारे पास कोई क्या कहते हैं lipid नहीं होता. There is no lipid in the protein code. It is only made up of capsomer protein. So there is no lipid in the protein code. So A is out just because lipids present नहीं होते हमारे viruses के protein. It's just capsomer protein. DNA core. जरूरी नहीं है कि हर वायरस जो है वो डीएनए वायरस हो. We can have an RNA core virus as well because there are a lot of RNA viruses out there. आउटर एनवेलप और फॉस्फोलिपिड. नाउ हमारे पास बिल्कुल एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होती हैं. और वायरसेस की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होती है. उनके जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे होती है, इन विच वी क्लासिफाई देम इनटू आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस. और उनकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एनवेलप होती है, विच इज अपार्ट फ्रॉम द कैप्सिड. कैप्सिड सब में होगा, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा एनवेलोप होता है. कुछ वायरसेस के पास वो एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा एनवेलोप नहीं होता, जिनको हम नॉन एनवेलोप या नेकेड वायरसेस बुलाते हैं. So again, an envelope is not present in all viruses. Non-cellular structures, yes, all viruses are non-cellular in nature. They're considered acellular. They're not considered as living cells, and hence D is the correct answer. 4 extracts from different plant materials were made and tested with Benedict's solution. Benedict's is the test for reducing sugars. The extracts were boiled with Benedict's solution for 240 seconds and the final color was recorded. Achari, so we have red, yellow, blue, green. Which sequence of plant extracts represent an increasing quantity of reducing sugars? Now, हमारे पास increasing quantity सबसे ज्यादा किसके पास है? 1 के पास है, because सबसे ज्यादा color change कहाँ पर आ रहा है? 1 में आ रहा है. So 1 has to be the solution containing the maximum amount of reducing sugars. This has to be the least. This is max, this is least. And that gives us with the option number D. क्योंकि D में ही हमारे पास क्या कहते हैं maximum जो है वो 1 पे है. अगर हम अरेंज भी करें तो हमारे पास 3 के बाद 4, then 2 and then 1. I always say remember this as PGUR because हमें विबग्योर याद रहता है. तो विबग्योर का जो ये वाला पार्ट है ना, this basically tells us increasing quantity of reducing sugars. ब्लू है तो सबसे कम reducing sugars है, R है तो सबसे ज्यादा reducing sugars है, green, yellow, orange are in the middle. So विबग्योर के through you can easily crack the Benedict solution test. Which have properties that are dependent on hydrogen bonds? Now, cellulose, a molecule of hemoglobin, water. डेफिनेटली हमारे पास तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. हमें पता है कि सेल्यूलोज में जो हमारे पास सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे होते हैं वो किसके थ्रू बन रहे होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बन रहे होते हैं बिटवीन सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स. बहुत सारा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स हैं. ये लीनियर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स कैसे बनाएंगे? बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड सेल्यूलोज में प्रेजेंट होते हैं. हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन के पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन के पास टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी होगा. हाइड्रोजन बॉन्ड्स टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होती हैं. वाटर की तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं सिवाय अनोमलस डेंसिटी वाली, सारी ही वाटर की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर. एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Which statement is correct? Cellulose, glycogen, and amylopectin are all polymers. Yes, this seems to be correct. Let's read the other three. Ribose, amylase, and phospholipids are all macromolecules. Now, हमारे पास ribose is a 5-carbon monosaccharide. So it is not a macromolecule at all. तो ये हमारे पास macromolecule नहीं है. It is a pentose sugar. Starch, glucose and amylose are all monomers. हमारे पास सिर्फ ये मोनोमर है, बाकी starch एक पॉलीमर है, amylose एक पॉलीमर है. Sucrose, deoxyribose and amylopectin are all polysaccharide. Now again, deoxyribose is also a 5-carbon monosaccharide, so it is not a polysaccharide, and hence option number A is the correct answer.
What exactly is a macromolecule? Macromolecules are basically large molecules made up of smaller molecules. हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स में अगर आपको मल्टीपल स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए कोई भी चीज नजर आ रही है वो आपका एक मैक्रोमोलेक्यूल होगा। मोनोमर हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, ये वो चीजें हैं जो खाली अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम्स या एलिमेंट्स बना सकते हैं बट फिर वो मॉलिक्यूल तो नहीं रहा ना। तो इवन अगर आप अपने मोनोमर को या अपने क्या कहते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे तो फिर वो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। सो अ मोनोमर इज योर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिसको फिर आप जोड़ जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और उन बड़े मॉलिक्यूल्स का मैक्रो मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। Okay, the diagram shows two amino acids. Some of the hydrogen atoms are numbered 1 to 6. Which two numbered hydrogen atoms could contribute to the production of a molecule of water when a peptide bond forms between these two amino acids? अच्छा जी, हमारे पास जो water molecule बनता है when two amino acids are joining together, तो वो कैसे बनता है कि हमारे पास जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड का वो अपना OH देता है और जो अमीन ग्रुप होता है वो अपना एक H देता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, दिस 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 एंड दिस 1 3 4 एंड 6, ये जो 1 3 4 एंड 6 वाले हाइड्रोजन हैं, these can form or these can contribute in the production of a molecule of water. So let's see हमारे पास अगर कोई ऐसा पेयर हो जिसमें हमारे पास इन चार में से कोई दो गिवन हो, so we would select that. सॉरी, आई थिंक सो मेरी आवाज आप लोगों को एक सेकंड के लिए नहीं आई होगी, माइक में थोड़ा सा एरर आ गया था। यस यस, सो द बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, somebody just asked कि हमारे पास 1 and 4 क्यों नहीं, देखो 1 and, बिल्कुल हमारे पास 1 3 4 and 6 कैन मेक वाटर मॉलिक्यूल, बट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और एक अमीन ग्रुप होना चाहिए। सो हमारे पास अगर हम 1 and 4 सेलेक्ट करते हैं, सो हमारे पास 1 and 4 वाला जो हाइड्रोजन है वो तो अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन है। तो अमीन ग्रुप के दो हाइड्रोजन आपस में कंट्रीब्यूट करके वाटर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। सो वन हाइड्रोजन हैज टू बी फ्रॉम द अमीन ग्रुप एंड द अदर हैज टू बी फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं 1 and 4 को चूज नहीं कर रहे हैं और हम 1 and 6 को चूज कर रहे हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टूडेंट wrote 4 statements about water. Water has high specific heat capacity which maintains the temperature of water within cells. Mammals rely on water having a relatively low latent heat of vaporization to keep them cool. When the negatively charged ion is added to water, the partially positive charge on the hydrogen atom is attracted to the ion. When surrounded by water, non-polar molecules tend to be pushed apart from one another. Which statements are correct? Statement number one. Yes, statement number one is the correct statement because yes, water has a high specific heat capacity which maintains the temperature of water within cells. तो हमारे पास जो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से रहता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जरा सा भी जो टेम्परेचर चेंज होता है वो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा होता। सो वन इज करेक्ट। If you look at number two is incorrect. Why? Because water also has a high latent heat of vaporization, not a low latent heat of vaporization. So two is incorrect. When a negatively charged ion is added to water, the partially positive charge on the hydrogen atom is attracted to the ion. Yes, that is absolutely correct. When surrounded by water, non-polar molecules tend to be pushed apart from one another. That's not a correct statement. Why? Because हमारे पास क्या होगा, हमारे पास let's say ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है। एंड लेट्स से ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास अगर ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर साथ थे ना, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स वुड बी पुश्ड अपार्ट। व्हाई वुड दीज बी पुश्ड अपार्ट? क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो इन पोलर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आकर इन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फासला आ जाएगा बिकॉज बीच में क्या आ जाएंगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू कर देंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज वाटर इज नॉट सराउंडिंग देम एंड बिकॉज ऑफ दैट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग पुश्ड अपार्ट, सो दे वुड एक्चुअली कम क्लोजर टू वन अनदर। डज दिस मेक सेंस? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान अट्रैक्ट होकर स्पेसेस क्रिएट नहीं कर रहा है, गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, इस वजह से द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वुड नॉट बी पुश्ड अपार्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज वाटर उनको सराउंड ही नहीं करेगा। सो water does not surround non-polar molecules, and that is why they are not pushed apart from one another. And hence, option B is the correct answer. Typical enzymes are large globular proteins with a specific tertiary structure, tertiary shape, which molecular interactions are directly involved in maintaining the tertiary shape. Hydrogen bonding, yes. Disulfide bridges, yes. Hydrophobic interaction, yes. And hence, option A is the correct answer. Which statement about the Michaelis-Menten constant Km is correct for an enzyme with a low affinity for its substrate? अच्छा जी, हमारे पास लो अफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा इट इज नॉट अट्रैक्टेड। सो व्हाट डू यू से, हमारे पास Km हाई होगा इन दिस सिचुएशन या लो Km होगा इफ देयर इज लो अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट? करेक्ट मीन, आई एम आस्किंग कि हमारे पास if an enzyme has a low affinity, a low attraction towards its substrate, would that enzyme have a low Km value or would the enzyme have a high Km value? It would have a high Km value, exactly. क्योंकि उसको greater substrate concentration चाहिए होगी for reaching Vmax upon 2, और इसी वजह से उसको higher substrate concentration चाहिए होगी Vmax तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, ज्यादा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तभी वो अपना क्या कहते हैं एंजाइम रिएक्शन अच्छे से कर पाएगी। लो सबस्ट्रेट में क्योंकि उसकी अफिनिटी कम है, ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, now this is a rather analytical question and I would like if you guys participate in it with me. Long chain saturated fatty acids change from solid to liquid at higher temperatures compared with short chain unsaturated fatty acids. Which fatty acids would be more likely to form triglycerides in mammals that live in cold climates? Long chain saturated, long chain unsaturated, short chain saturated, or short chain unsaturated? Read the question, read the answers, and then give me your suggestion. It's more like a suggest question than a very explicit question from the syllabus. Take a moment and answer. Okay. Now, the answer actually is option number D, short chain unsaturated. And I'll explain why. हमारे पास क्या कहती हैं, what do you guys think कि हमारे पास जो फैट स्टोर्स होने चाहिए उनका क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी जो है, यानी फॉर एग्जांपल यू गाइस आर अवेयर कि जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होती, हमारे पास फूड हम कंज्यूमिंग कर रहे होते हैं, सो वो फैट्स आर ब्रोकन डाउन, राइट? डू यू ऑल अग्री विद दिस कि फैट्स आर ब्रोकन डाउन फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गिव अस एनर्जी, राइट? नाउ हमारे पास वी नीड फैट्स इन द केस कि हमारे पास ग्लूकोज ड्रॉप डाउन हो जाए किसी भी वजह से, फास्टिंग है या क्या कहते हैं हमने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, ताकि बॉडी को तो एनर्जी कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है, तो उसको फैट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है इन दैट केस। सो अगर हमारे पास जो फैट्स हैं उनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है टू रिलीज एनर्जी बिकॉज दे आर वन ऑफ द मेन रिजर्व्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, सो डोंट यू गाइस थिंक इट शुड बी easier for the fats to melt? फैट्स मेल्ट होंगे, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तभी क्या कहते हैं हम उनको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, रेस्पायर कर पाएंगे, क्योंकि फैट्स जब देखो हमारे पास यू गाइस हैवंट स्टडीड रेस्पिरेशन, A2 में आओगे तो पढ़ोगे, बट आई विल गिव यू अ रफ आइडिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आप ग्लूकोज की भी बात करते हो, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर, और इसके नतीजे में क्या निकलता है, एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई एम गिविंग यू गाइस अ रफ आइडिया ताकि ये क्वेश्चन समझ आ जाए, एंड आपके पास एटीपी बनता है, ठीक है। एटीपी हम ऐसे इक्वेशन में लिखते नहीं है, बट एटीपी इज द एनर्जी दैट वी टॉकिंग अबाउट। नाउ 666, अगर इधर देखो, हमारे पास ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल था C6H12O6, और ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन वाला, इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहना है इसे कि जब भी हमारे पास रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है जिसको हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, इसेंशियली हम उसका जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे होते हैं। और जब वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उन बॉन्ड्स की जो एनर्जी है, वो एनर्जी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कि हमारे पास जो भी हमारे एनर्जी है, एनर्जी फूड है, वो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हम कहते हैं ना कि खाने में ताकत होती है, तो वो ताकत एक्चुअली क्या है, हमारे पास फूड इज बेसिकली एक तरह से आपको केमिकल कॉम्पाउंड है। आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, आप प्रोटीन्स खा रहे हो, आप लिपिड्स खा रहे हो, इसेंशियली ये सब कॉम्पाउंड्स है, हमने इनका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं। फूड का जो कॉम्पाउंड है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आप उसके बॉन्ड्स ब्रेक करते हो, और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की वजह से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हो रही होती है आपकी बॉडी में। नाउ हमारे पास अगर हमें फैट्स चाहिए और लो टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेट्स में हम रह रहे हैं, तो हमें फैट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट हमें बता रही है कि जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट हायर टेम्परेचर्स। यानी कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनको जो ब्रेक करने की हमारे पास क्या कहते हैं एनर्जी चाहिए होगी, वो ज्यादा चाहिए होगी, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन वुड बी ग्रेट, और हम रह रहे हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में। तो अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा ही नहीं, तो हमारे पास जो ये लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हमारे पास दैट वुडंट बी लाइकली। और दूसरा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, वो क्या कहते हैं, दे आर बेसिकली, उनमें फ्लूइडिटी क्या कहते हैं कम होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत टाइटली पैक होता है, राइट। अब हायर टेम्परेचर्स पे क्या होगा, हायर टेम्परेचर्स पे हमारे पास वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फ्लूइड हो जाएंगे। लेकिन कोल्ड क्लाइमेट्स में अगर हमें मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करनी है, तो जो टेम्परेचर का फैक्टर है, जो हाई टेम्परेचर पे हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइड हो जाती है, उसके अक्रॉस मूवमेंट आसान हो जाती है, वो नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज द टेम्परेचर इज लो ओवर देयर। तो हमारे पास अगर हमें मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी भी चाहिए, बिकॉज देखो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर easy movement of molecules in and out of the phospholipid bilayer. So unsaturated fatty acids का कोल्ड क्लाइमेट में होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर नहीं है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने के लिए। इस वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें किंक्स होते हैं, उनमें थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं, वो लूजली पैक होते हैं। सो कोल्ड क्लाइमेट्स में जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बरकरार रह पाती है, वो टेम्परेचर के फैक्टर की वजह से नहीं, इंस्टेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? Can't we say that triglycerides are also used as a layer of fat used to insulate mammals in cold climates? तो हमारे पास क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो लिक्विड की फॉर्म में, हमारे पास इट इज लाइक कि शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो सॉफ्टर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे विजुअलाइज करो, इफ यू एवर सी किसी खाने में अगर यू सीन द फैट कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, कहते हैं जो भी आप एनिमल कंज्यूम कर रहे हो, उसको खाते हुए निहारी की अगर आप बात करो, यू वुड हैव सीन चर्बी, राइट। अब वो क्या कहते हैं, जो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, अगर आप उसको बहुत देर तक मेल्ट करोगे तो वो इजिली लिक्विडिफाई हो जाएगी। बट और अगर आप उसको क्या कहते हैं उसके सॉलिड फॉर्म में भी फील करो तो वो सॉफ्ट होती है, वो बहुत हार्ड नहीं होती है। सो बेसिकली हमारे पास इस तरह की वो क्या कहते हैं इंसुलेशन के लिए भी जो हमारे पास फैट लेयर होती है ना, वो सॉफ्ट होनी चाहिए। और वो सॉफ्टनेस हमारे पास तभी आती है जब हमारे पास क्या कहते हैं शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। लॉन्ग चेन होंगी तो देखो जितने ज्यादा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन होंगे ना किसी भी उसमें मॉलिक्यूल में, उतना मुश्किल होगा उस मॉलिक्यूल को तोड़ना, बिकॉज इट मेक सेंस। लॉन्ग एक चीज है, लॉन्ग चेन एक चीज है, उसका ब्रेक डाउन वुड बी हार्डर इन कंपैरिजन टू अ शॉर्ट चेन, राइट।
When animal cells are cultured, salt solution is added to keep the cells alive. What is the purpose of the salt solution? To allow facilitated diffusion of salts into the cell, to prevent diffusion of other ions in or out of the cell, to prevent net movement of water into or out of the cells, to provide a source of energy for active transport. What do you guys think? बहुत आसान सवाल है. You guys have been doing lab experiments. तो टेल मी, हम किसी भी सेल को अलाइव रखने के लिए उसको एक कल्चर सोल्यूशन में क्यों रखते हैं? व्हाई कांट वी जस्ट कीप इट इन वाटर? वाटर में रख दें? व्हाई डू वी हैव टू कीप इट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन कल्चर की? वेरी गुड. द आंसर इज सी. बिकॉज हमारे पास हम सेल्स को एक ऐसे कल्चर में रखते हैं जो कि आइसोटोनिक. आइसोटोनिक सोल्यूशन में देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर into and out of the cell because we have to maintain the osmotic balance totally. The following are all processes that allow movement into cells. Which processes require ATP? Phagocytosis, active transport, facilitated diffusion. तो हमारे पास फेगोसाइटोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस कोई भी प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी चाहिए होता है. तो आपके पास चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी चाहिए होता है, उसको हम एक्टिव प्रोसेस बुलाते हैं. So it is an active process. It requires ATP. Active transport obviously requires ATP. Facilitated diffusion does not require ATP, and hence A is the correct answer. Which features are required to allow for efficient diffusion? A large surface area, a short diffusion pathway, maintenance of a constant diffusion gradient. All of these. Surface area ज़्यादा होगा तो ज़्यादा phases होंगे for diffusion. Short diffusion pathway होगा, जल्दी हो जाएगी diffusion. Constant diffusion gradient होगा. Diffusion gradient has to be maintained for diffusion to take place in the first place. हमारे पास, if you remember फिजा, गैस एक्सचेंज में हम क्या कहते थे कि the reason gas exchange is taking place is कि हमारे पास alveolar ventilation और constant deoxygenated blood supply की वजह से एक concentration gradient maintained रह रहा है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहते हैं? देखो, अगर हमारे पास कांस्टेंट डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब यह है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है हमारे पास. अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, उससे हमारी डिफ्यूजन बढ़ेगी. बिल्कुल, यू आर राइट. अगर हमारे पास डिफ्यूजन ग्रेडियंट बढ़ रहा है या हमारे पास लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट है तो यस, डिफ्यूजन वुड बी एफिशिएंट, डिफ्यूजन वुड इंक्रीज. बट वर यू देयर इन द पेपर 2 वाला जो हमने रिवीजन क्लास की थी और हमने कहते हैं उसमें वो फिश वाला पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर दैट? उसमें बेसिकली क्या हो रहा था? हमने कहा था कि अगर सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मिडिल में कि यहाँ पर भी 50% ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर भी 50% ऑक्सीजन होगी. नाउ इन दिस केस डिफ्यूजन वुड स्टॉप बिकॉज देयर इज नो ग्रेडियंट. कोई ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डिफ्यूजन रुक जाती है. सो अगर आपने कंटिन्यूसली डिफ्यूजन करवानी है, जैसे हमारे उसमें होता है, हमारे गैस एक्सचेंज सिस्टम में होता है, इफ यू वांट कंटिन्यूअस डिफ्यूजन टू टेक प्लेस, तो आपका जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है, इट हैज टू बी मेंटेन. एरिया ए और एरिया बी के दरमियान कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह ज्यादा एक जगह कम, तभी डिफ्यूजन एफिशिएंटली हो पाएगी. सही है. What is the role of mitosis? Growth of organisms, production of genetically different cells, repair of cells, replacement of cancerous tissue. Okay. Now, what do you guys suggest? Read statement C again. This is a very common error that we all tend to do when we are answering questions related to mitosis. Cells cannot get repaired. अगर एक सेल खराब है तो माइटोसिस उसको सही नहीं कर सकता. माइटोसिस का काम होता है रिपेयर ऑफ टिश्यू. किस तरह से एक ऑर्गन या टिश्यू को हम बेटर करते हैं थ्रू माइटोसिस? उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और डेड सेल्स. ये माइटोसिस नए सेल्स बना रहा होता है. इट इज नॉट व्हाट यू से कॉजिंग द सेल्स टू रिपेयर. या फिर हम टिश्यू रिपेयर जरूर बोल सकते हैं कि हमारे पास जब नए सेल्स से रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगी ओल्ड सेल की, तो उसकी वजह से हमारा टिश्यू ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा. रिपेयर ऑफ सेल्स नहीं होती, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती है, जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर होता है. सही है.
B कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज माइटोसिस से जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ कैन यू टेल मी बिटवीन A and D what is the most plausible answer? A. D क्यों नहीं? बिकॉज हमारे पास इफ यू रिमेम्बर हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैंसरस टिश्यू में काम होता है माइटोसिस का. हम जब पूरा ट्यूमर फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं माइटोसिस के चैप्टर में, सो वी से कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं उनका इंटरफेस जो है वो शॉर्ट हो जाता है एंड वो ज्यादातर माइटोसिस की स्टेज में रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कैंसरस सेल्स जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं और वो इंक्रीज करती हैं. ट्यूमर फॉर्मेशन होती ही अनकंट्रोल्ड माइटोसिस की वजह से. सो डी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Telomeres prevent the loss of genes from the ends of chromosomes during DNA replication, but they become shorter each time they're copied. In cancer cells and stem cells, the telomeres remain the same length. Which statement is correct for all human cells? If telomeres become too short, a cell may stop dividing. This seems to be a plausible statement. Let's read through the next three. Adding telomeres could increase the rate of aging of cells. What do you guys think? Is it correct? Is it incorrect? If it is incorrect, why is it incorrect? ऑपोजिट होता है बिल्कुल. अगर हमारे पास टेलोमियर्स जो है उनको हम ऐड करते जाएंगे तो एजिंग हमारी कम हो जाएगी. बिल्कुल. Telomeres are repaired by the enzyme RNA polymerase. No, they are added back by the enzyme telomerase, not RNA polymerase. टेलोमेर्स प्रिवेंट ऑल डैमेज अकरिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. नहीं, हमारे पास खाली वो एंड्स पे एक प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते. एंड हेंस ऑप्शन ए इज द ओनली प्लॉजिबल स्टेटमेंट ओवर हियर. Okay. The nucleus of a mouse body cell in G1 phase of the cycle has 1.2 into 10 to the power minus 12 grams of DNA. What will be the mass of DNA in the nucleus of the cell at the end of S phase and at the end of G2 phase of the cell cycle? अच्छा जी, हमारे पास एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? टाइम्स 2 हो जाएगी एट द एंड ऑफ एस फेज. ठीक है, तो हमारे पास टाइम्स 2 अगर हम इसको कर देंगे तो ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगी. एंड ऑफ G2 फेज में भी हमारे पास वो डबल फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि G2 फेज में हमारे पास सेपरेशन नहीं हुई है, हमारे पास डिविजन नहीं हुआ है, माइटोसिस नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है. सो हमारे पास एंड ऑफ एस फेज में भी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो टाइम्स 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स जाते हैं वही नंबर रहेगा, और एंड ऑफ G2 फेज में भी डबल डीएनए मॉलिक्यूल्स वाला नंबर ही रहेगा. एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Is this clear? Any questions about this? Do you want me to explain it in further detail? I'll explain. Let's say ये हमारे पास mitotic cell cycle है. ये हमारे पास G1. ठीक है, G1 में हमारे पास कितने डीएनए हैं? G1 में we have 1.2 into 10 to the power minus 12 grams of DNA. सही है. ये S phase है. S phase के स्टार्ट में 1.2 into 10 to the power minus 12 grams है. एस फेज में हुई डीएनए रेप्लिकेशन, तो एंड ऑफ एस फेज में हमारे पास डबल द नंबर हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम्स. नाउ लेट्स से दिस इज योर G2 फेज. ये आपका माइटोसिस है एंड दिस इज योर साइटोकाइनेसिस. ठीक है. नाउ बिटवीन G2 एंड एस फेज हमारे पास, सॉरी, बिटवीन एस फेज एंड G2 फेज would there be any reduction in the number of DNA? There would be no reduction. हमारे पास कोई सेपरेशन नहीं हो रही, हमारे पास कोई माइटोसिस नहीं हो रहा, हमारे पास कोई न्यू सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही. तो हमारे पास एंड ऑफ G2 फेज में भी 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 भी रहेगा अमाउंट ऑफ डीएनए. सही है. एंड हेंस आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. G1 एंड G2 इज बेसिकली इंटरफेस हो रहा होता है. यहाँ पे हर चीज जो इंटरफेस में हो रही होती है वो G1 एंड G2 में हो रही होती है. सो बेसिकली दिस होल सेक्शन is your interphase section. So interphase में आपका synthesis of lipids, synthesis of proteins, all the cellular activities are taking place.
और एस फेज ऑफ इंटरफेज में स्पेसिफिकली एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का. ओके. What occurs during prophase in animal cells? Fragmentation of the nuclear envelope. Fragmentation of the nuclear envelope का basically मतलब है breaking of the nuclear envelope, which we know कि yes हमारा nuclear envelope disintegrate होता है during prophase. Nucleolus disappears. Yes. Stained chromosomes become visible. Yes. हमारे पास chromosomes जो है वो chromatin से अपनी X-shaped form में आ जाती हैं. Centrioles replicate. Now, what do you guys have to say about this? True, untrue, what? हमारे पास this process, central replication, takes place in interphase before mitosis starts. So ये प्रोफेज में नहीं होता, ये हमारे पास कहाँ पर होता है? बिफोर माइटोसिस हो रहा होता है. So this would be option number B. Is this clear? Which statement describes the structure of ATP? Let's first draw the structure of ATP. We have a ribose sugar. So here's a ribose sugar, a nitrogenous base. Okay, and यहाँ पर ATP की बात करें तो adenine होगी basically. And we have 3 phosphate groups. It's a DNA nucleotide with 2 extra phosphates. No, it is an RNA nucleotide. क्योंकि इसमें राइबोस होती है, not deoxyribose. It is an RNA nucleotide with 2 extra phosphate groups. Yes, 2 extra phosphate groups होते हैं. Hence, option number C is the correct answer. Rifampicin is an antibiotic used to treat tuberculosis. It works by inhibiting RNA polymerase. Inhibiting का मतलब stopping the action of RNA polymerase. Which processes are directly inhibited by this antibiotic? Okay. DNA replication, enzyme synthesis, ATP synthesis. Okay. Now, हमारे पास ATP synthesis कहाँ पर हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है. ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास वी नो कि जो हमारा स्टॉक पार्टिकल है उसकी जो एंजाइम, उसका जो हेड होता है, इट इज एन एंजाइम एटीपी सिंथेज. तो दैट एंजाइम एटीपी सिंथेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. सो ऑब्वियसली हमारे पास इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से एटीपी का सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होगा. Enzyme synthesis is what? It is protein synthesis. अगर हम simple words में बोलें, because enzymes are globular proteins. So yes, RNA polymerase हमें चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर. RNA polymerase हमारे पास क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करते हुए mRNA बनाता है. सो अगर हमारे पास RNA क्या कहते हैं पॉलीमरेज होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज अगर इनहिबिट होगी तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी. ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पाएगी. सो यस, आवर एंजाइम सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस वुड बी इनहिबिटेड. डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वी डू नॉट नीड एन आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए रेप्लिकेशन में हमें 2 एंजाइम्स चाहिए होती हैं, एक्चुअली मोर देन 2, लेकिन हम अपने सिलेबस में 2 एंजाइम्स पढ़ते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज. So again, DNA replication would remain unaffected, and hence option number D is the correct answer. The table shows the DNA triplet codes for some amino acids. The base sequence on the template DNA strand coding for part of a polypeptide is shown. 2 mutations occur in this sequence during DNA replication. Which mutated template DNA strand would result in a shorter polypeptide? Okay, if you look over here, we have CCA. CCA makes glycine, ACG makes cysteine, GCG makes arginine, TTA makes asparagine, TTC makes lysine, and GCA makes arginine. So in total, we have 6 amino acids in this chain. So हमारे पास हमें म्यूटेटेड टेम्पलेट में कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो 6 अमीनो एसिड्स ना बना रहा हो. यहाँ पर हमारे पास 6 अमीनो एसिड्स है. वी हैव टू चूज अ म्यूटेटेड टेम्पलेट डीएनए व्हिच मेक्स लेस देन 6 अमीनो एसिड्स, तभी हमारे पास एक शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड बनेगा. ओके, सो इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास कोई स्टॉप कोडॉन नहीं है. अगर मिडिल में स्टॉप कोडॉन आ जाएगा
तो इसका मतलब है हमारे पास कोई फर्दर अमीनो एसिड्स बनेंगे नहीं। सो अगर अब्रप्टली किसी पॉइंट पर आपका स्टॉप कोडॉन आ रहा है, that would basically be a mutation which would result in a shorter polypeptide. So stop codon का हमारे पास ATC कोड है। ए में ATC प्रेजेंट नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। सो सी में हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स होंगे? द फर्स्ट वन CCA, द सेकंड वन ACG, GCG एंड DDG। तो हमारे पास 4 अमीनो एसिड्स होंगे। और उसके बियॉन्ड स्टॉप कोडॉन है तो फर्दर अमीनो एसिड्स नहीं होंगे। सो सी लुक्स लाइक अ प्लॉजिबल आंसर। डी में भी हमारे पास स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो सी इज द ओनली पॉसिबल आंसर, क्योंकि यहाँ पर 4 अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी, नॉट बियॉन्ड दैट। Some of the features present in the transport tissues are listed. Lignified wall, cytoplasm, mitochondria, pits, plasmodesmata, which features are present in xylem vessel elements. So xylem vessel elements have lignified walls, obviously. Cytoplasm नहीं होता, mitochondria नहीं होता, pits होती हैं, plasmodesmata. Do xylems have plasmodesmata? Xylem with हमारे पास mature xylem vessels जो होती है ना, they do not have plasmodesmata. So option number C is the correct answer. The diagram show transverse sections through parts of plants. Which row is correct? Now this is the leaf, this is a stem, and this is a root. अच्छा जी, contains lignin, तो xylem की identification पूछ रहे हैं, transport organic solutes तो phloem की identification पूछ रहे हैं. Now हमारे पास this is xylem and this is phloem. Xylem, phloem over here. This is phloem, this is xylem. Then हमारे पास क्या कहते हैं? This is xylem and this is phloem. So xylem हमारे पास क्या क्या है? 1 है, 4 है and 6 है, which is option number B. So B is the correct answer. Pretty straightforward if you are aware with the cross sections. Any issues with this? Which molecules form hydrogen bonds with water during transpiration? Cellulose in the xylem wall, suberin in the xylem wall, other water molecules in the xylem. What do you guys think would be the answer? Suberin नहीं हो सकता, क्योंकि suberin एक तो xylem wall में present होता नहीं है, प्लस suberin को हमें पता है it is hydrophobic in nature. तो ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता विद वाटर. So 1 and 2, sorry, 1 and 3 only, which is option number C. Okay, now this is a very interesting and analytical question. I would like you guys to pay attention. Some plant species can take up heavy metal contaminants. Yes, suberin is in the Casparian strip physa. Some plant species can take up heavy metal contaminants that are dissolved in soil water and then transport them within the plant. Within plant cells, the heavy metals accumulate mainly in the vacuole. So they are telling कि हमारे पास soil water में कुछ metal contaminants होती हैं जो present होती हैं soil water में, क्योंकि वो dissolved होते हैं, तो वो जब soil water plant suck in करता है तो उसमें क्या कहते हैं, वो metal contaminants भी present होते हैं. And those metal contaminants can be transported within the plant and usually वो कहाँ पर store हो रहे होते हैं metals? वो हमारे पास vacuole के अंदर store हो रहे होते हैं. So this is a scenario which the examiner has told about us. Which suggestions about the transport and accumulation of heavy metals are valid? After initial entry into the root, some of the heavy metals can pass through the tonoplast to be stored in the vacuole of cells in the cortex. Because we have this prior information from the description given above, कि हमारे पास वो metals कहाँ पर store हो रहा होता है? Vacuole में store हो रहे होते हैं, accumulate हो रहे होते हैं. So अगर किसी चीज ने vacuole में accumulate होना है, तो जो vacuole की membrane है वो उसको तो cross करेगा. So yes, हमारे पास क्या कहते हैं, passing through the tonoplast to be stored in the vacuole is a very plausible statement. Anybody who's unable to understand why statement number 1 is correct? Clear?
Now, the heavy metals take an apoplastic pathway in the xylem, but at the endodermis must take a symplastic pathway. Yes, हमारे पास क्या कहते हैं, we know कि हमारे पास dissolved soil water है, right? जिसमें metals present है. So dissolved soil water में जो metals present है, so we know कि जो water है, वो एपोप्लास्ट पाथवे भी ले सकता है और वो सिम्प्लास्ट पाथवे भी ले सकता है. नाउ हमारे पास लेट्स से सिम्प्लास्ट पाथवे कहाँ पर कंपलसरी होता है, एंडोडर्मिस में कंपलसरी होता है. अदरवाइज पूरे प्लांट सेल में आप क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे भी ले सकते हो और सिम्प्लास्टिक पाथवे भी ले सकते हो. द ओनली टाइम व्हेन द एपोप्लास्ट पाथवे इज ब्लॉक इज व्हेन आप क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस को क्रॉस कर रहे हो. So one also seems to be a plausible statement. Let's read 3 and 4. The rate of accumulation of the heavy metals in leaf cells will be faster at night when photosynthesis is not occurring than during the day. What do you guys think about statement number 3? Does this seem correct? Does this seem incorrect? It is incorrect. Why? हमारे पास क्या कहते हैं, दे आर सेइंग कि हेवी मेटल्स जो हैं वो सॉइल वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल वाटर के थ्रू मूव कर रहे होते हैं. हमारे पास the statement is saying the rate of accumulation of the heavy metals in leaf cells will be faster at night. लीफ सेल्स तक अगर हमारे पास क्या कहती हैं, डिजोल्व सॉइल वाटर, डिजोल्व मेटल्स को पहुंचना है, तो हमारे पास ये किसके थ्रू पहुंच रहा है, वाटर के थ्रू पहुंच रहा है. वाटर का ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द लीफ सेल जो ज्यादा होता है वो दिन की टाइम पे होता है या रात की टाइम पे होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द लीफ वाया जाइलम, इज दैट ग्रेटर एट नाइट और ग्रेटर एट डे? It's during the daytime when the rate of movement of water through xylem towards the leaf cells is greater because photosynthesis में water use up हो रहा होता है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है. सब्सिक्वेंटली हमारे पास दिन के टाइम पे जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं उनका स्टोमेटा ओपन होता है, तो हमारे पास इवेपोरेशन ज्यादा हो रही होती है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो दिन के टाइम पर, डे टाइम पर ज्यादा होता है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी रात के टाइम पर कम होता है. सो लीफ सेल्स में ग्रेटर अक्यूमुलेशन रात में कम होगी, दिन में ज्यादा होगी, बिकॉज ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो दिन में ज्यादा होता है, सो ऑब्वियसली रेट ऑफ अक्यूमुलेशन भी दिन के टाइम पर ज्यादा होगी. सो 3 इज इनकरेक्ट. The presence of heavy metals causes the transpiration stream to slow down and reduce the rate of transpiration. Now, what do you think about the statement? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? What is basically the factor upon which transpiration depends? गर्मी पर, ओपन स्टोमेटा पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन पर, राइट? अच्छा, तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड ओपन स्टोमेटा पे एंड इवेपोरेशन पे, सो वुड द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स कॉज द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम टू स्लो डाउन? लेट्स से बहुत धूप है और बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, तो हमारे पास अगर हेवी मेटल्स हैं, सो वुड दैट स्लो डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द movement of water molecules out of the intercellular spaces because of evaporation. सही है, यही होता है. सो क्या हमारे पास हेवी मेटल्स की प्रेजेंस से ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस होगा, कि कितना वाटर मेसोफिल सेल की सरफेस से इवेपोरेट होकर डिफ्यूज आउट कर रहा है? राइट, फर्क नहीं पड़ेगा. सो हमारे पास ट्रांसपिरेशन इज हैपनिंग इन द लीव्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड. ठीक है, तो हमारे पास इट वुड नॉट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. So hence 1 and 2 are the most plausible statements. Is this clear? Make sense? What is the correct route for the movement of water from cell to cell in the apoplast pathway? Through adjacent cell surface membranes? No, cell surface membranes को cross नहीं करता water apoplast pathway में. Through intercellular spaces, through plasmodesmata, through Casparian strip. Not through plasmodesmata, not through the Casparian strip, through intercellular spaces. जो हमारे पास सेल वॉल और सेल्स के दरमियान की जो जगह होती है उसके थ्रू हमारा क्या कहते हैं, वाटर मूव कर रहा होता है इन द एपोप्लास्ट पाथवे.
Which row shows the correct sequence for the movement of sucrose into phloem sieve tube? इसके लिए आई ऑलवेज से whenever a question like this comes कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें आइडेंटिफाई करनी है ट्रांसलोकेशन की, so draw a rough diagram next to your question या जहां पर भी जगह हो. So what happens is ये हमारे पास let's say mesophil cell है. इसके साथ क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है, और फिर हमारे पास वी हैव द सीव ट्यूब एंड वी हैव द जाइलम. द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि हमारे पास कंपेनियन सेल जो है इट पंप्स प्रोटॉन्स इनटू सेल वॉल के अंदर पंप करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पंप नहीं करता, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग अभी मैं मीसोफिल सेल के अंदर पंप करवा रही हूँ. वंस द सेल वॉल के अंदर प्रोटॉन्स गेट पंप्ड, these protons come back with the sucrose. So hydrogen ion plus sucrose enter, and then the sucrose diffuses via the plasmodesmata into the sieve tube and water from xylem comes in. So ये हमारे पास first 4 steps होते हैं. Now let's see if what sequence is correct. Diffusion of sucrose into the companion cell cytoplasm. Active transport of protons into the companion cell cytoplasm. गलत. Absolutely wrong. एक तो active transport of protons into the companion cell cytoplasm तो बिल्कुल भी नहीं होता है. And सबसे पहला step diffusion of sucrose into the companion cell cytoplasm भी नहीं है. Okay, co-transport of protons and sucrose into the companion cell cytoplasm. Active transports Active transport of protons out of the companion cell cytoplasm. इसमें जो sequence है वो उल्टा है. This is first and this is second. ठीक है, so B is out. C says active transport of protons into the companion cell cytoplasm. Again, cytoplasm में नहीं, cell wall में होता है. अच्छा नहीं, यहाँ पे अगेन वही वाली बात लिखी हुई है कि कंपेनियन सेल के अंदर प्रोटॉन्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे. कंपेनियन सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑफ द प्रोटॉन्स इनटू द सेल वॉल ऑफ द सोर्स मेसोफिल सेल. सो इनकरेक्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स आउट ऑफ द कंपेनियन सेल साइटोप्लाज्म. यस, कंपेनियन सेल साइटोप्लाज्म से बाहर जा रहे होते हैं इनटू द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल. Co-transport of protons and sucrose into the companion cell cytoplasm. Yes. Diffusion of sucrose into the sieve tubes. Absolutely correct. What occurs during ventricular systole in a mammalian heart? Aortic pressure increases, atrial pressure does not change. Ventricular pressure increases. Okay. अच्छा जी. Aortic pressure increases. Atrial pressure does not change and ventricular pressure increases. एट्रियल प्रेशर तो चेंज हो रहा होता है बिकॉज एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है. सो हमारे पास द एट्रिया इज रिलैक्सिंग, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. आयोटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास, व्हाट यू गाइस थिंक, आयोटिक प्रेशर इंक्रीजेस और आयोटिक प्रेशर डज नॉट चेंज? ओके, लेट्स सी द ग्राफ. इसी क्वेश्चन इसी पेपर में एक ग्राफ भी आएगा. Now this is the graph of ventricular of the cardiac cycle. Now हमारे पास ventricular systole वाला कौन सा पॉइंट होता है? हमारे पास till this point जो पूरा B वाला पार्ट है ये हमारे पास ventricular systole है. Now if we see over here हमारे पास this is the aortic pressure की लाइन. aortic pressure आ रहा है आ रहा है आ रहा है. अब यहाँ पर हमारा ventricular systole वाला एरिया चल रहा है. नाउ हमारे पास कैन यू ऑल सी ये जो हमारा aortic pressure है वो इंक्रीज कर रहा है. इज दिस ऑब्जर्वेबल? और वेंट्रिकुलर सिस्टली में आयोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा. क्यों नहीं करेगा इंक्रीज? मतलब क्यों इंक्रीज करेगा? वो इसलिए इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या हो रहा होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे फोर्स द ब्लड इनटू आयोटा. ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है आयोटा के अंदर ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, द ब्लड इज बीइंग पुश्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द आयोटा. Blood volume बढ़ेगा, there are more molecules of blood hitting the walls of aorta, due to which the aortic pressure would increase. Does that answer your question, Neil? Confusion clear हो गई कि during ventricular systole, because blood is being pumped into the aorta,
blood volume of the aorta is increasing, due to which the blood pressure would also increase. और ग्राफ के थ्रू भी हमें नजर आ रहा है कि ड्यूरिंग ventricular systole the aortic pressure increases. This is correct. This is correct, and hence option B is the correct answer. Honestly, cardiac cycle is easy. अगर इसको हम, मुझे भी when I was in O levels I used to find cardiac cycle very hard, but A levels तक आते आते for some reason आसान लगने लगे थे. It's just, I would say, imagine a heart actually doing something. I actually say cardiac cycle को ना याद करने से cardiac cycle कभी याद नहीं होती. You would always forget it. So I just have a film of cardiac cycle and the events happening in my mind, and I just think मैं कार्टून प्ले करती हूँ अपने दिमाग में कि okay, if one thing has to enter the other area, उसके walls खुले होने चाहिए. अगर ब्लड अंदर आ रहा है किसी एरिया के और वॉल्स बंद हो गए तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. सो मुझे याद करने से ऑलवेज यूज टू मिस इट अप. सो एग्जैक्टली मेक एन एनिमेशन इन योर ब्रेन कि हमारे पास चार डिफरेंट लोकेशन है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा. थिंक ऑफ थ्री एरियाज जहां पर एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जा रहा है. जब ब्लड जा रहा है तो हमारे पास क्या कहते हैं, वॉल्स खुले होने चाहिए. तो पहले स्टेप में राइट एट्रियम और क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल्स खुले हुए होने चाहिए. उसके लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा. दैट्स व्हाई द वॉल्स आर ओपन. द मोमेंट द वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग तो हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्वियसली एट्रिया में हमें ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड होने नहीं देना, जिसकी वजह से जो हमारे पास एवी वाल्व है वो बंद हो जाएगा. तो हमारे पास प्रेशर वेंट्रिकल्स में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. जब इतना बढ़ जाएगा वेंट्रिकल्स में प्रेशर के वेंट्रिकल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो अयोटा से कहेगा कि मेरे भाई प्लीज ले लो ब्लड. तो वो फिर अयोटा कहेगा ओके फाइन, आई विल बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट एनालॉजिकली. तो फिर अयोटा अपने दरवाजे खोल देगा और कहेगा कि ओके दे तो थोड़ा सा ब्लड मुझे, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर देता हूँ. तो जब थोड़ा सा बोझ वेंट्रिकल का हल्का हो जाएगा बाय सेंडिंग द ब्लड टू द अयोटा, तो वेंट्रिकल कहेगा अरे मुझे तो सांस आने लगी है, लेट्स काम डाउन, लेट्स रिलैक्स, इतना ओवरवेल होने की कोई बात नहीं है. सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर इन अ वेरी फनी वे. सो थिंक ऑफ ऑल दीज पीपल बीइंग रियल ह्यूमंस. एट्रिया, वेंट्रिकल और अयोटा को अपने दिमाग में कैरेक्टर्स बना लो. Yeah, that's great. If you have a book flicks happening, Alima, that's great. I don't like infectious. I actually love infectious disease and immunity for some reason. Huh. I actually like immunity because it just makes sense. I don't know why. But I think infectious disease और immunity से जो मुश्किल सवाल आते हैं वो paper 2 में आता है because a lot of case study happens over there. So question, sorry, paper 2 में yes, I would say they are infectious disease challenging होता है, ऐसा मुझे लगता है. because वो केस बेस्ड सिनेरियोज आ जाती हैं और आपको थोड़े एनालिसिस देना पड़ता है या ग्राफ्स आ जाते हैं. Anytime there are graphs, I already hate that question. I hate graphs. For the life of me, I hate graphs, be it physics, be it chem, be it math, be it anywhere. Graphs are the bane of my existence. That otherwise it's cool. Okay, which plant diagram represents the tissue in a major vein? Now, A and B have a narrow lumen. They are arteries. They cannot be vein. Let's come to C and D. अच्छा जी, अब सी में क्या प्रॉब्लम है. सी में हमारे पास दो लेयर्स नहीं है. वी हैव द फर्स्ट लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हमारी सेकंड लेयर है. वेयर इज द थर्ड लेयर? देयर इज नो थर्ड लेयर. ओवर हियर इन डी हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकंड लेयर है और ये हमारी जो ये वाला बीच का एरिया है, दिस इज योर थर्ड लेयर. हाउ इज डी एन आर्टरी? आर्टरी का तो ल्यूमेन नैरो होता है ना, वाइड थोड़ी होता है. और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसका ल्यूमेन का. सो ए एंड बी हैव टू बी आर्टरी. डी एंड सी कुड बी वेन बिकॉज उनका जो ल्यूमेन है वो इरेग्युलर है. सो वेन की शेप इरेग्युलर सी होती है, आर्टरी की थोड़ी बेहतर शेप होती है. और ल्यूमेन इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन मार्कर बिटवीन आर्टरी एंड वेन.
ओके, कार्डियक साइकिल आ गई। लेट्स सी किसने अभी तक अपनी मूवी को सही से डायरेक्ट कर लिया है। The diagram shows the pressure changes in various structures of the left side of the heart during the cardiac cycle, at the end of which period is the ventricle full of blood. When is the ventricle full of blood? A, B, C, and D. Correct, Neil. What about the rest of you? What should be the answer to this? A, B, C, or D? Correct, Fiza. The correct answer is A. And why is that? Because B जो है, अगर B का हम end देखें, अब B के end पे हमारे पास क्या कहते हैं? The blood has been pumped into the aorta. Why? Because ये जो point है, ये वाला point, यहाँ पर आपका seminal valve open हो गया होगा। और इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपका जो वेंट्रिकल से ब्लड है, दैट वुड बी सेंट टू द aorta. सो एट द एंड ऑफ पॉइंट बी आपका क्या कहते हैं, जो ब्लड है वेंट्रिकल से, दैट हैज बीन पम्प्ड इनटू द aorta, तो इट इज द वेंट्रिकल वुड नॉट बी फुल ऑफ द ब्लड एट द एंड ऑफ पीरियड बी. सो ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए में हमारे पास ए बी वाल्व भी बंद होगा और सेमिनल वाल्व भी बंद होगा, जिसकी वजह से सारा जो ब्लड है वो अक्यूमुलेट कहाँ पर हुआ है, आपके वेंट्रिकल्स में. Which description of movement of substances during tissue fluid formation is correct? Low hydrostatic pressure forces substances out of the capillary at the arterial end. यहीं पर हम इसको cancel कर देंगे because arterial end पे high hydrostatic pressure होता है and that high hydrostatic pressure forces substances out of the capillary. Tissue fluid moves back into the venule due to a net hydrostatic pressure change in the capillary. हमारे पास देखो टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन क्या होती है, अगर ये कैपिलरी है, दिस इज अ कैपिलरी, सही है, एंड दिस इज द आर्टीरियल एंड, दिस इज द वीनस एंड. वी हैव अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and a low hydrostatic pressure here. Hydrostatic pressure क्या होता है? Hydrostatic pressure is the pressure which the blood applies on the walls of the capillary. Now, हमारे पास high hydrostatic pressure की वजह से जो components of the blood है, they're pushed out to form the tissue fluid. So the reason why the tissue fluid forms in the first place at the arterial end is because of the high hydrostatic pressure. That's absolutely correct. On the contrary, हमारे पास क्या कहते हैं? The tissue fluid is going back at the venous end. Now, this is not because of hydrostatic pressure, it is because of osmosis. ये osmotic pressure की वजह से होता है. So the pushing out is because of high hydrostatic pressure and the coming back in is because of the osmotic pressure, because यहाँ पर जो आपका water potential होता है टिश्यू फ्लूइड का वो ज्यादा होता है, यहाँ पर ब्लड का जो water potential है वो कम होता है. So difference in water potential की वजह से, osmotic pressure की वजह से, osmotic pull की वजह से, the tissue fluid moves back into the capillary at the venous end. So B is incorrect. Does this make sense? Any questions about this? Option number C, movement of water and tissue fluid into the capillary by osmosis is due to the low water potential and low hydrostatic pressure inside the capillary. Yes, they're saying कि हमारे पास जो movement of water and tissue fluid into the capillary होती है, यानी कि कैपिलरी में वापस जा रहा है टिश्यू फ्लूइड से वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. और क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैपिलरी है उसमें क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कम होगा, वी जस्ट डिस्कस, और उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होगा, एंड दैट इज व्हाई द वाटर इज री एंटरिंग इनटू द कैपिलरी. A high water potential of the surrounding tissue fluid causes substances to leave the capillaries at the arterial end. Incorrect. So C is the only plausible answer. Anybody who has any difficulty understanding this? Okay. Which row shows the change in concentration of substances in RBCs when carbon dioxide diffuses from active cells? Carbonic anhydrase. Now, carbonic anhydrase enzyme है. उसका क्या कहते हैं, वो जितनी प्रेजेंट है एक आरबीसी में, वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी उतनी ही रहेगी, बिकॉज द एंजाइम इजंट गोइंग एनीवेयर. एंड प्लस हमारे पास मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते, ऑर्गेन्यूल्स नहीं होते, तो हमारे पास और कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन भी नहीं सकती. तो एक मेच्योर आरबीसी में जितनी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है वो उतनी ही रहती है, सो देयर इज नो चेंज. हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस. नाउ हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है एक आरबीसी में,
तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म बाइकार्बन to form carbonic acid, and that carbonic acid dissociates into bicarbonate and hydrogen ions. तो हमारे पास definitely concentration of bicarbonate and hydrogen ions would increase if carbon dioxide is coming inside RBCs. Which statement about the human gas exchange system, which statements about the human gas exchange system are correct? The absence of cartilage in small bronchioles allows them to expand. Yes. The walls of the alveoli are made of cuboidal epithelium. No, they are made up of squamous epithelium. Alveoli secrete a substance which reduces surface tension. Yes, it is called surfactant. The trachea and bronchi are supported by rings of cartilage. Incorrect, because bronchi में C-shaped ring नहीं होती, हमारे पास irregular plates होती हैं या discs होती हैं. So 1 and 3 are the correct statements. 4 types of cell in the gas exchange system are listed. Alveolus epithelium cell है J, ciliated cell है K, goblet is L, and smooth muscle cell is M. The ticks in the table show some specialized features of 3 of these types of cell. So first has many mitochondria. Second has many mitochondria. Third has many mitochondria, lots of endoplasmic reticulum, many Golgi bodies. Now, इसकी identification हमारे लिए आसान है. This would be what? Can you guys tell me? Cell number 3 जो है वो कौन सा वाला cell है out of J, K, L, M? Because इस question का answer हम cell number 3 से ही कर सकते हैं. Exactly, goblet cell है. Which is basically L, right? So number 3 is goblet cell, and hence option number C is the correct answer. Why M, Fiza? What makes you think कि M हमारा सही आंसर होगा? Okay. So हमारे पास क्या कहते हैं, when we're talking about a goblet cell का काम होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाना. ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगर एक पर्टिकुलर उसमें हो, उसको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं. सो जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन होती है, उसके लिए मैनी गोल्जी बॉडीज चाहिए. आई ऑलवेज से गोल्जी बॉडीज जहां पर भी नजर आए विद रिस्पेक्ट टू the gas exchange system, they're talking about the goblet cell. So G for Golgi, G for goblet cell, G for glycoprotein. That's the win-win situation here. Okay. Why is it difficult to control the spread of tuberculosis? Acha ji. Global air travel for commerce and tourism has increased. We always say कि infectious diseases जो फैलती हैं वो फैलती ही ज्यादातर किस वजह से है? टूरिज्म की वजह से है. Case in point, we all have seen COVID. We knew कि COVID के टाइम पर travel जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था. First year, nobody was traveling, nobody was getting out of their cities even or countries because आप जितना move about करोगे आपका इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होगा. इवन कोविड जो है वो चाइना से पूरी दुनिया में कैसे फैला? बिकॉज ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई है इस वजह से. The bacterium that causes tuberculosis has evolved resistance to some antibiotics. हमें पता है कि tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis या Mycobacterium bovis. तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो टीबी के लिए हम जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हम यूज करते थे, अब ऑल मेजरली वो तमाम जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, आपका रिफैम्पिसिन हो गया और ये सारे, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस बन चुकी है. सो जो बैक्टीरियम है इसने बहुत ज्यादा अपने आप को इवॉल्व करके म्यूटेट करके रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप कर लिया. The bacterium that causes tuberculosis shows great antigenic variability. Now, this is a statement which might confuse some people, and this examiner was somehow very nice कि उन्होंने पहली दो स्टेटमेंट्स ऐसी थी कि आपको पता है कि 1 and 2 तो आंसर होगा, जिसकी वजह से यू कैन इजिली नो कि ए आपका करेक्ट आंसर है. बट 3 इज अ स्टेटमेंट विच कैन कंफ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज हमें पता है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट करता है और बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है. और हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे पास जब म्यूटेशन होती है तो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है, इसी वजह से हमारे पास हमें न्यू एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं, न्यू एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं.
The thing with tuberculosis is the bacteria which causes tuberculosis, ये इतनी ज्यादा एंटीजेनिक वेरिएबिलिटी शो नहीं करता, म्यूटेट बिल्कुल करता है, रेजिस्टेंस बहुत इजीली बना लेता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, बट अपनी एंटीजन की शेप को ये चेंज नहीं करता। और इसको सपोर्ट करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि बीसीजी वैक्सीन जो है, जो सबको ऑन देयर फर्स्ट डे ऑफ बर्थ लगती है, दैट बीसीजी वैक्सीन इज अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। दैट बीसीजी वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड इन द लास्ट सेंचुरी, 20th सेंचुरी में वो डिस्कवर की गई थी फ्रांस में। आज तक वो बीसीजी वैक्सीन यूज हो रही है एज अ वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। बहुत ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन वो नहीं है, बट इट्स स्टिल द सेम वैक्सीन दैट इज बीइंग यूज्ड सिंस सो मेनी इयर्स। उसकी वजह ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है टीबी के बैक्टीरिया का वो इतना चेंज नहीं हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव द सेम बीसीजी वैक्सीन इन सो मेनी इयर्स। डज दिस मेक सेंस? सो यस, म्यूटेट करता है, बिल्कुल करता है, तभी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। लेकिन उस म्यूटेशन की वजह से जो उसकी एंटीजन का शेप है वो चेंज नहीं हुआ। दैट इज व्हाई द बीसीजी वैक्सीन इज स्टिल इन यूज। सिविल अनरेस्ट एंड पॉवर्टी रिजल्ट इन ओवरक्राउडेड लिविंग कंडीशंस। यस, जब भी ओवरक्राउडेड लिविंग कंडीशंस होंगी, हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस है वो बढ़ेगा। Rabies is a viral disease which can be spread to humans by a bite from an infected animal. One method of treatment is to inject the patient with antibodies specific to the rabies virus. Which statements about this treatment are correct? Then patient will have natural passive immunity. नहीं, natural नहीं है, because again इंसान injection insert कर रहा है, so artificial है. The injected antibodies will be broken down by the patient. हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर ब्रोकन डाउन। नेचुरल एंटीबॉडीज भी हमारे पास एक पॉइंट पर आके ब्रेक डाउन कर जाती है, सारी जिंदगी एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं रहती। दे आर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो इवेंचुअली वो हाइड्रोलाइज हो जाती हैं हमारी बॉडी में। The patient's memory cells will be able to produce this antibody more rapidly in the future। नहीं, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी है, तो कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे। The immunity provided will only last a short time। सॉरी, ये मैंने सही क्यों किया, गलत है। दैट्स करेक्ट कि हमारे पास जो पैसिव इम्यूनिटी होती है शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। बाय वाई? बिकॉज नो मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड। So the correct statements are 2 and 4. A person's blood group is determined by antigens present on the RBCs. The table shows the antigens and antibodies in the blood of people with different blood groups. Blood group A has A antigen and B antibody. Blood group B has the B antigen and A antibody. Blood group AB has A and B antigens and no antibodies, whereas blood group O has no antigens and it has antibody A and antibody B. During a blood transfusion, it is essential that the person who receives the blood does not have antibodies to the donor's blood. Which blood groups can be given to a person with blood group B? ये अगर हमें पूरी टेबल ना भी बताते तो हमें पता था कि इसका आंसर डी होने वाला है, बिकॉज हमेशा याद रखो O is a universal, what do you say, blood donor. So O ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड टाइप को आप दे सकते हो, कोई भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता। दैट इज वाई ब्लड ग्रुप O इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ऑन द कॉन्ट्री, आपके पास सेम ब्लड ग्रुप अगर होगा या O ब्लड ग्रुप होगा तो आप तभी वो दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। Is this clear? Any questions? But a student used a diagram to show 4 types of cells involved in the primary immune response. Which row is correct? अच्छा जी, सेल टाइप 1, अननोन एंटीजन एंटर्स द बॉडी। तो सेल टाइप 1 क्या करते हैं? रिलीजेस केमिकल्स दैट स्टिमुलेट फेगोसाइट्स टू इनगल्फ एंटीजन्स। उसके बाद हमारे पास सेल टाइप 2 डिस्ट्रॉय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस व्हिच वुड बी रिलीज्ड इनटू द बॉडी। तो हमारे पास वायरसेस के अगेंस्ट तो टी किलर सेल्स काम करते हैं। टी किलर सेल्स वर्क अगेंस्ट वायरसेस एंड कैंसर सेल्स। सेल टाइप 3 प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड टू बाइंड टू एंटीजन्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का काम होता है बी सेल्स का एंड पर्टिकुलरली प्लाज्मा सेल्स का। Cell type 4 recognizes the foreign antigen, move towards it and surrounds it. This is a phagocyte.
अच्छा, दिस इज अ टी हेल्पर सेल, ऑल्दो वी नो कि हमारे पास टी हेल्पर सेल्स जो हैं दे स्टिमुलेट ह्यूमोरल और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारे पास क्या कहते हैं, दिस कुड बी अ कंफ्यूजिंग पार्ट कि सेल टाइप 1 क्या है, बिकॉज हमने नहीं पढ़ा कि कैसे कौन से सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के जो कि केमिकल सिक्रीट करते हैं टू स्टिमुलेट फेगोसाइट्स। तो अगर लेट्स से हमें इसका आंसर नहीं पता था, बिकॉज अगेन एक्सप्लिसिटली हमने नहीं पढ़ाई अपने सिलेबस में, तो हमें तीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सेल टाइप 2, 3 एंड 4। लेट्स ट्राई टू मैच दोस फर्स्ट एंड देन पुट इट ऑन होल्ड, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। सेल 1 बी लिम्फोसाइट, नहीं, बी लिम्फोसाइट हमारे पास सेल टाइप 3 है और सेल टाइप 2 इज अ टी किलर सेल, तो ए इज आउट। They're saying cell 1 is a macrophage. Cell 2, which is destroying viruses, is a B lymphocyte. Incorrect. Cell 1, they are saying is a T helper cell. Cell 2 is a T killer cell. Cell 3 is a B lymphocyte. And cell 4 is a macrophage. So these three are exactly what we have identified. And hence हम C को correct answer choose कर देंगे. Is this clear? Any questions? Okay. Perfect. Yes, Fiza? Yes, T helper cells release cytokines. Okay. Thank you so much for joining in. I shall be seeing you guys inshallah on Monday. Allah Hafiz. Take care.